बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our article of spherical mirrors. We have studied two types of spherical mirrors, which are convex mirrors and concave mirrors. We studied different terminologies relating to spherical mirrors, which includes pole, center of curvature, radius of curvature, focal length, principal focus, and principal axis. Today we are going to start reflection by spherical mirrors. As you know that, and as I told you in the previous lectures, that mirror exhibits the phenomena of reflection of light, in which a ray of light from one medium strikes the second medium and it bounces back towards the first medium. This phenomena is basically reflection of light. So we are going to study now how the reflection takes place in spherical mirrors. So we have two types of spherical mirrors, convex mirrors and concave mirrors. And you already know that what is the difference between convex and concave mirrors. In convex mirrors, the inner side of the mirror is polished and the outer side is reflecting. And in concave mirrors, the outer side is polished and the inner side is reflecting. In concave mirrors, real images are formed, and in convex mirrors, virtual and erect images are formed. So, as you know that there is a ray which is called as incident ray, which comes and strike to the second medium. हमारे पास एक रे आती है, ठीक है, लाइट की रे आती है, एयर में से आती है, किसी और मीडियम में से आती है और आकर स्ट्राइक करती है मिरर को, ठीक है। वो मिरर को जिस एंगल पर स्ट्राइक करती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। And what is angle of incidence? The angle made by the incident ray with the normal line. And what is the normal line? बिल्कुल सीधी line, erect line, बिल्कुल straight line, ठीक है। So the angle made by the incident ray with the normal is called the angle of reflection. After striking to the mirror, it bounces back towards the first medium, and that ray which bounces back is called the reflected ray. And the angle which is made by the reflected ray with the normal is called the angle of reflection, which is represented by small letter r. So we have studied two laws of reflection. First law is the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. And the second law was the angle of incidence must be equal to the angle of reflection. जितना angle of incidence होगा उतना ही angle of reflection होना चाहिए, ठीक है। So convex mirror में जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी inner curved surface polished है और outer curved surface reflecting है। तो ray of light आई which is called the incident ray, ठीक है, उसने strike किया। ये जो ब्लू मार्कर से मैंने लाइन बनाई है ये कौन सी है? रे है, ये इंसिडेंट रे। एंड रिमेंबर व्हाट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? डिस्क्राइबिंग the propagation or passage of light with the help of rays और lines, ठीक है। सो ये आ गई आपके पास इंसिडेंट रे जो कि हमने एक लाइन से बनाई। ये मैंने बनाया है नॉर्मल, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, स्लिपरी सी सरफेस है तो मुझसे एंगल में थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 हो सकती है। सो इसलिए आपने क्या करना है, जब आपने पेपर पे बनाना है या अभी आप नोट कर रहे हो तो आपने एंगल डी की मदद से ही बनाना है। आप किसी एंगल पर इंसिडेंट रे लें, ठीक है, और जो वो आकर पॉइंट पर स्ट्राइक करे, फॉर एग्जांपल उसको हम क्या कहते हैं? ये वाला हमारा पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने कौन सा बनाना है एंगल? यहाँ पर डी रखनी है, डी का वो जो मिड पॉइंट है, और सीधा 90 जहाँ नजर आ रहा है आपको वहां पर आपने पॉइंट लगाकर
इस पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है तो वो नॉर्मल बन जाए। अब ये नॉर्मल लाइन जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो होगा आपके पास क्या, नॉर्मल के साथ, वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यू मस्ट बी केयरफुल दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस तरह आपने एंगल बनाना है कि वो दोनों सेम हो। मतलब अगर 90 का ये है तो ये 60 का अगर है तो डिफरेंस 90 60 में 30 है, तो यहाँ पर 120 डी, अगर आप यहाँ पर डी रखेंगे, ठीक है, इस तरह अगर मैं बनाता हूँ, ऐसे समझ लें आप, ये डी है, तो यहाँ पर अगर वो 90 होगा तो यहाँ 30 होना चाहिए, 60 होगा और वहाँ 120 होगा। दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है 90 से वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपके पास आ गई रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं, पेज नंबर 39। लाइक प्लेन सर्फेसेस, एक थे दो टाइप्स के मिरर हमने पढ़े थे, एक प्लेन मिरर्स और एक स्फेरिकल मिरर्स। Like plane surfaces, spherical surfaces also reflect light following the two laws of reflection as stated for plane surfaces। हमने किसके लिए डिस्कस किया था, एक प्लेन सरफेस के लिए हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये आगे थी इंसिडेंट रे, ये था नॉर्मल और ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये हमने प्लेन सरफेस के लिए डिस्कस किया था। वो कह रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं या जो स्फेरिकल सरफेस हैं उन पर भी वही दो लॉज अप्लाई होते हैं जो कि प्लेन सरफेसेस पर होते हैं। So figure 12.6 shows how light is reflected by the spherical surfaces of concave and convex mirror according to the two laws of reflection। जिस तरह उसने बताया, इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉन्केव मिरर्स के केस में। कॉन्केव मिरर्स में क्या होता है, कॉन्केव मिरर्स में आपको पता है जो आउटर कर्व सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग आउटर कर्व सरफेस जो होती है वो पॉलिश होती है और इनर कर्व सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर में क्या होगा, आपके पास उसी तरह इंसिडेंट रे आई, अब अंदर की तरफ है, वो पहले बाहर की तरफ आ रही थी। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग ही बाहर की तरफ थी, यहाँ रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ से आई, ये इंसिडेंट रे आई, इसी तरह नॉर्मल ड्रॉ किया और फिर वो वापस जाकर कहाँ हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिमेंबर फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन किसका होता है आपके पास, ये साइन होता है एंगल का। ठीक है, ये लाजमी साथ लिखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कॉन्केव मिरर में भी आप देख सकते हैं वही चीज़ है आपके पास। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी 12.1 की तरफ। एक्टिविटी 12.1 पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये जो एक्टिविटी है इसको आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह, आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए और एक स्टेनलेस स्टील का स्पून होना चाहिए। ठीक है, जो आम आप चम्मच यूज़ करते हैं वो चम्मच होना चाहिए, लेकिन वो बड़ा चम्मच लें क्योंकि छोटे इमेज पर आप ज़्यादा अच्छी तरह विजुलाइज नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा जो चम्मच होता है वो वाला लें। ठीक है, सो स्टेनलेस स्टील का जो आपके पास इस तरह अगर है, ठीक है, एक होती है आपके पास, अगर आप स्टेनलेस स्टील के वो स्पून को देखें, उसकी जो अपर सरफेस है, जो कर्व है, वो कर्व होती है इस तरह। ठीक है, एक जो हिस्सा होता है वो इस तरह होता है, थोड़ा डिप्रेशन होता है उसमें, एक ऐसे होता है और एक उसकी होती है आउटर सरफेस। एक होती है आपके पास उसकी इनर सरफेस और एक होती है आपके पास कौन सी सरफेस होती है, उसकी आउटर सरफेस होती है। अब जो आपके पास आउटर सरफेस होती है स्पून की, वो बिहेव करती है एज अ कॉन्वेक्स साइड या एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर आप वो स्पून लें और स्पून की जो पिछली साइड है, आउटर साइड, इस तरह जो होगी, उस पर अगर रखें सामने तो आपको अपना इमेज नजर आएगा, इमेज नजर आएगा आपको, लेकिन जो आपको अपना इमेज नजर आएगा वो उल्टा नजर आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, आपको जो इमेज है सीधा नजर आएगा। उल्टा मैंने कह दिया, उल्टा होता है कॉन्केव के केस में। दोबारा से देखते हैं, जो आपके पास स्पून होता है, ठीक है, स्पून की जो ये पिछली सरफेस, आउटर सरफेस होती है, वो बिहेव करती है एज अ कॉन्वेक्स मिरर और उसमें आपका जो इमेज है वो बनता है सीधा। क्या बनता है आपका इमेज, सीधा बनता है बिल्कुल, और वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, हमने पढ़ा है कल कि उसमें हमें लग ये रहा होता है कि वो एक खास फोकस से आ रही हैं रेज कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमारी ख्याली इमेजिनेशन ही होती है, वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है,
इसी तरह अगर आप देखें ये स्पून एज अ मिरर में पेज नंबर 40, अ वेल पॉलिश स्पून एक्ट एज अ कॉन्वेक्स राइट एंड अ कॉन्केव लेफ्ट। ठीक है, अगर आप देखें तो राइट साइड पर जो है, राइट साइड पर आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स है, और जो लेफ्ट साइड है उस पर आपके पास क्या है, कॉन्केव है। ठीक है, सो जो आपके पास पीछे वाली साइड होती है स्पून की, वो एक्ट करती है आपके पास कौन सी, एज अ कॉन्वेक्स मिरर, और जो उसके अंदर वाली साइड होती है वो आपके पास एक्ट क्या करती है, एज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, सो अब एक्टिविटी में वो क्या कह रहा है, एक्टिविटी 12.1 में वो कह रहा है टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, या तो आप एक कॉन्वेक्स मिरर ले लें, मिल जाता है इजीली आपको, और अ वेल पॉलिश स्पून यूजिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून। उसने भी अब यहां पर क्या किया, आउटसाइड ऑफ द स्पून को आपने यूज करना है, यूजिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून विद द कॉन्वेक्स सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, कि वो जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो बाहर की तरफ हो। बल्जिंग आउटवर्ड का मतलब है वो जो कॉन्वेक्स सरफेस है, वो जो पिछला हिस्सा है स्पून का, वो बाहर, वहां से आपने अपना इमेज देखना है उसको। ठीक है, सो कॉन्वेक्स सरफेस कहां होगी, आउटवर्ड होगी। एंड होल्ड इट इन वन हैंड, और उसको अपने हैंड पर पकड़ ले। होल्ड अ पेंसिल विद इट्स टिप इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड। एक हाथ में क्या करना है, एक हाथ में आपने पकड़ लेना है स्पून। ठीक है, इसको अगर मैं आपको मार्कर से बताऊं, या इस वक्त यहां मेरे पास ये ब्रश पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर आप देखें इसको, अगर आप एज ए स्पून कंसीडर करें तो ये बाहर वाली जो सरफेस है, आउटर सरफेस जो है, ये एक्ट कर रही है एज अ कॉन्वेक्स साइड। सो इसको आपने एक हाथ में इसको रख लेना है। ठीक है, और एक साइड पे आपने पेंसिल, उसने पेंसिल का वर्ड यूज किया है या पेन का, वो हम देख लेते हैं। उसने पेंसिल यूज किया तो आप पेंसिल ही आप कर लें, आप पेन भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सो आपने एक हाथ में पकड़ लिया वो स्पून, और एक हाथ में आपके पास क्या आ गया, पेंसिल आ गई। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे वो कहता है होल्ड अ पेंसिल विद इट्स टिप इन द, ये तो हो गया, ट्राई टू लुक एट इट्स इमेज इन द मिरर। अब आप क्या करें, आप स्पून को ऐसे रखें, ठीक है, इस तरह, और उसके सामने क्या रख दें, जो पेंसिल है आपकी, और देखें उसका इमेज, देखें आप उस स्पून की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर। अब क्या है आगे, वो क्या कह रहा है, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, क्या इमेज सीधा है या इमेज उल्टा है, इज द इमेज इरेक्ट और इज द इमेज इन्वर्टेड। आपको पता है क्योंकि वो बिहेव कर रहा है एज अ कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। मैंने आपको कल ये चीज बताई थी, दोबारा लिख देता हूं मैं, कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, और आई जो हम, क्योंकि हमारे जो आई है वो भी रियल इमेज बनाती है, इन्वर्टेड होता है, लेकिन ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाता है। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है वो बनता है इरेक्ट, या जिसको हम सीधा भी कहते हैं। क्योंकि वो कॉन्वेक्स साइड बिहेव कर रही है स्पून की आउटर सरफेस, तो इमेज क्या बनेगा, इमेज इरेक्ट बनेगा। आप देख भी सकते हैं पेंसिल का इमेज, ठीक है, अपने घर में एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, इमेज विल बी इरेक्ट। इज द इमेज स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। हमने कल कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज पढ़ के आए हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि पेज नंबर 38 पर कॉन्वेक्स मिरर की जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, उसमें है सेकेंड लाइन में, इन कॉन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब आप ये प्रैक्टिकली खुद देख लेंगे कि जब आप देखेंगे उसका इमेज स्पून में तो आपको वो इमेज छोटा नजर आएगा। सो इमेज साइज विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर। अब आप क्या करें, पेंसिल को अवे फ्रॉम द मिरर लेकर जाएं, ठीक है, यानी कि इस तरह जैसे आपने रखा हुआ है, आप पेंसिल को दूर लेकर जाएं। Does the image become smaller or larger? क्या इमेज छोटा हो जाएगा या इमेज बड़ा हो जाएगा? आप जब ये देखेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप पीछे लेकर जाएंगे इमेज छोटा होता जाएगा। इमेज क्या होता जाएगा, इमेज छोटा होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वो रिफ्लेक्शन है उसमें वो प्रोमिनेंट नहीं होगी, ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसलिए इमेज का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, उसको पीछे लेकर जाते जाएंगे। Guess whether the image will move closer to or farther from the focus. ठीक है, फोकस का एज सच इस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ज्यादातर ये देखने में आया कि जो फोकस है वो थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन एज सच इतना फर्क नहीं आता। जो मेन फर्क आता है वो होता है कि आपका जो इमेज का साइज है वो छोटा हो जाता है,
और जैसे आप फर्दर मजीद लेकर जाते हैं, और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा इस केस में कॉन्वेक्स मिरर में जो कि स्पून की आउटर सरफेस है उसमें हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है, सो ये आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी विजुलाइज करने के लिए कि आप देख सकें। अच्छा, अगर अब आप क्या करें, आगे जो नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी उसमें क्या होगा, एक तो थी आउटर सरफेस स्पून की, अगर आप उसकी जो अंदर की सरफेस है जिसको खाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या कोई अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो उसको पीने के लिए, वो साइड जो अंदर डिप्रेस हुई हुई है उसको वो साइड बिहेव करती है एज अ कॉनकेव मिरर। अगर आप उसमें अपना इमेज देखेंगे तो आपको उसमें अपना इमेज क्या नजर आएगा, इन्वर्टेड, क्योंकि कॉनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज और उसका इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड। ठीक है, सो उसमें अगर अंदर वाली साइड पे स्पून के अपना इमेज या पेंसिल का देखेंगे वो इन्वर्टेड नजर आएगा, अगर पिछली साइड पे देखेंगे तो सीधा नजर आएगा, इरेक्ट नजर आएगा। ठीक है, सो ये था आपके पास एक एक्टिविटी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने आर्टिकल इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, इसमें हम बेसिकली एक फार्मूला डिस्कस करेंगे जिस फार्मूला की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या किसी भी इमेज का डिस्टेंस या उस मिरर पे जिस पे इमेज बन रहा है उसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे फार्मूले को जिसमें हम फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें, उस फार्मूले को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर फार्मूला। सो अगर हमने ये पता करना हो कि इमेज कहाँ पर प्रेजेंट है, इमेज जो है वो कितने साइज का बन रहा है, या इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना है, या उस जो मिरर पे इमेज बन रहा है उसकी फोकल लेंथ क्या है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास है एक स्फेरिकल मिरर फार्मूला। पिछली जो बुक थी, ठीक है, जो 2012 तक यूज हुई, 2013 में ये नई बुक आ गई थी। पिछली बुक में ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी पूरी डेरिवेशन मौजूद थी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने ये डेरिवेशन इस बुक में से निकाल दिया। ठीक है, उसके अलावा जो है आई डोंट थिंक सो कि सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में लाइट का चैप्टर है, वहाँ भी इसकी एज सच डेरिवेशन प्रेजेंट नहीं है। सो डेरिवेशन उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अब आपको सिंपल मैं ये इसीलिए यहाँ पर ये फार्मूला ही लिख दी। फार्मूला क्या है, फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक है f, स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास p है, p आपके पास क्या है, p है आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, और ये आपका वर्क फॉर डे 6। सो 1/p प्लस 1/q। सो p आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है मिरर से। ठीक है, मिरर ही बना रहे हैं ना, मिरर ही रिफ्लेक्शन करके इमेज दिखा रहा है, आईना जिसे आप कहते हैं। सो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका वो इमेज बना रहा है वो कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है मिरर से, वो कहलाता है p। ठीक है, और f क्या आ गई, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या थी, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर measured along the principal axis is called the focal length of the mirror। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करके आए कि क्या डिस्टेंस था, प्रिंसिपल फोकस जहां सारी जो लाइट रेज थी वो आकर क्या हो रही थी, फोकस हो रही थी, उससे लेकर पोल ऑफ द मिरर तक का जो डिस्टेंस था वो थी फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और ये भी हमने पढ़ा था कॉनकेव में, क्योंकि रियल इमेज बनता है उसमें फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, और कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है इसलिए वहां फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, लास्ट आपके पास है Q। Q इसमें क्या है, Q है इमेज का डिस्टेंस, कि इमेज कितने डिस्टेंस पर बना है। ठीक है, इमेज मिरर में कितने डिस्टेंस पर बना है वो कहलाता है आपके पास Q। ठीक है, इमेज डिस्टेंस जिसे आप कहते हैं। सो F विल बी द फोकल लेंथ, P इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड Q इज द इमेज डिस्टेंस। ये फॉर्मूला जो है आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर में, मिरर फॉर्मूला भी यही है, लेंस जो आगे हम जाकर लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, बस वहां मिरर की जगह लेंस आ जाएगा, टर्मिनोलॉजी सेम रहेंगी, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सो ये फॉर्मूला सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने इस चैप्टर में करने हैं या एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं आपको कि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें दिया जाता है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस दिया जाता है और वो कहते हैं फोकल लेंथ निकालें।
वो सॉल्व करके आंसर किसका निकाल आते हैं, आंसर वो निकाल लाते हैं 1/f का। इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 40 है, वो 1/20 प्लस 1/40 कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर निकाल आते हैं। लेकिन वो चीज़ गलत है। जो इसका फाइनल आंसर आता है आपके पास, जो इस पूरे को सॉल्व करके फाइनल आंसर आता है, फॉर एग्जांपल फाइनल आंसर आता है 50, तो आपने 50 का इनवर्स लेना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो 50 आंसर आया है, 50 आंसर आया है 1/f का। हमें 1/f का आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए फोकल लेंथ का। ठीक है, सो फोकल लेंथ अगर निकालनी हो तो 50 वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या सिंपल आपने अगर ये 1/f खत्म करना हो, जैसे आप लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हो, तो आप सिंपल 50 का इनवर्स ले लो, या 50 को क्या कर दो, 1 को 50 पे डिवाइड कर दो, तो वो जो आपके पास आंसर आएगा फाइनल, वो आपके पास क्या होगा, फोकल लेंथ का आंसर होगा। 1/f का आंसर बच्चे निकाल के छोड़ आते हैं, फिर उनके नंबर कट जाते हैं। सो आपने जो फाइनल आंसर आया उसका इनवर्स लेना है, और फिर आपके पास वो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। वो कहता क्या है, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज से क्या मुराद है, वेदर इमेज इज रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स वर्चुअल, कि हमारी इमेजिनेशन है, हमारे जो ख्यालात हैं जिनमें हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज को वर्चुअल लेते हैं, या तो हम जो मिरर फार्मूला है इससे ये देखते हैं कि क्या जो इमेज है उसकी नेचर को चेक करते हैं कि आया कि वो रियल है, आया कि वो आपके पास क्या है, वर्चुअल है या इमेजिनरी। formed in a mirror. How can we tell about the size of the image? हम किस तरह बताएंगे इमेज का कितना साइज है compared with the size of the object? To answer these questions, इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए one method is graphical और ray diagram. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हम जितनी भी डायग्राम्स बनाएंगे इस चैप्टर में, मिरर की, लेंजेस की, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की, उनको जो हम शो करेंगे उसे हम रे डायग्राम से शो करेंगे। रे डायग्राम मतलब लाइट की रेस की मदद से शो करेंगे। ठीक है, रे डायग्राम। सो यही कह रहे हैं, एक मेथड तो है कि ग्राफिकली या रे डायग्राम से बता दें कि जी इसका इतना डिस्टेंस है, ठीक है, इसका इतना डिस्टेंस है, इसका इतना डिस्टेंस है। एक तो ग्राफिकल तरीका है या रे डायग्राम से। बट वी कैन ऑल्सो आंसर दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक और मेथड भी है कि हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर लें जिसके जरिए से हम इन सारे सवालात के जवाब दें। बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन आ गई अब मिरर फॉर्मूला की, आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, नंबर 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नंबर 2 इमेज डिस्टेंस Q। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने जैसे कि बताया P से शो करते हैं, इमेज डिस्टेंस Q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ F ऑफ द मिरर, कि वो किन के दरमियान रिलेशन आपको बता रहा है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दरमियान P, इमेज डिस्टेंस Q के दरमियान और फोकल लेंथ F ऑफ द मिरर के दरमियान। ये मिरर फॉर्मूला आपको क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, नीचे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। इक्वेशन 12.1 इज ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ये दोनों इक्वेशन दोनों मिरर्स के लिए यूज की जाती है, लेकिन साइन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये जो Q और F के साइन हैं ये थोड़े चेंज हो जाते हैं। कैसे, उसने आपको एक टेबल से शो किया, मैंने भी यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दिया। अब आपने यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी से मेरा क्या मुराद है कि आपके पास क्वांटिटी से यहाँ क्या मुराद है, क्वांटिटी से ये मुराद है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ होगा, इस कॉलम में मेरे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, इमेज डिस्टेंस Q, फोकल लेंथ F। ठीक है, सो ये आ गई मेरे पास क्वांटिटीज। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव कब होंगी, ये सारी जो मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं P, Q और F, इस कॉलम में मैं ये बताऊंगा कि ये पॉजिटिव कब होंगी इस मिरर फार्मूला में, ठीक है, ये नेगेटिव कब होंगी इस मिरर फार्मूला में। ठीक है, सो इसके जरिए से हम ये चीज बताएंगे इस टेबल के जरिए से। ये टेबल अगर आप याद कर लें अच्छी तरह से तो न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट मींस कि उसका जो इमेज बनेगा
वो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज कहाँ बनता है? रियल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। रियल इमेज कहाँ बनता है? कॉनकेव मिरर में। सो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है P, ये यहाँ हम पॉजिटिव कब लेंगे? पॉजिटिव हम तब लेंगे जब हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा। और नेगेटिव कब होगा डिस्टेंस? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। बेसिकली नेगेटिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो नेगेटिव बनेगा वो पीछे बनेगा मिरर के, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए इमेज डिस्टेंस पर। अब हमें पता है जो कॉनकेव मिरर है उस पर इमेज बनता है आपका रियल इमेज बनता है। तो रियल अगर तो आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हो कि अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड, कि अगर एक कॉनकेव मिरर यूज किया गया तो आपके जहन में ये चीज आ जानी चाहिए कि Q की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ये जो Q इमेज डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर जो आपके पास P की वैल्यू है और Q की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ है। इसी तरह वर्चुअल इमेज में इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो कि वर्चुअल इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है, उस केस में उसकी वैल्यू आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, Q की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। किसके केस में? वर्चुअल इमेज के केस में। आगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। कि अगर कॉनकेव मिरर है इसका मतलब जैसे कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि उसमें फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनता है, इस तरह उसका जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। सो ये टेबल अगर आप याद कर लें, अच्छी तरह से इसे रिमेंबर कर लें, तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा बता भी देता हूँ आपको। बुक में जैसे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हेन पॉजिटिव, पॉजिटिव कब रियल ऑब्जेक्ट, व्हेन नेगेटिव, नेगेटिव कब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसी तरह इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में भी उसने बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें एक्टिविटी 12.2। अब जैसे एक्टिविटी 12.1 में पिछले वर्क फॉर आपके पास डे 5 में मैंने बताया था कि जो आउटर सरफेस है स्पून की वो बिहेव करती है एज अ कॉन्वेक्स मिरर, और जो इनर सरफेस है वो क्या कैसे बिहेव करती है? एज अ कॉनकेव मिरर। सो टेक अ कॉनकेव मिरर और अ वेल पॉलिश स्पून यूजिंग इनसाइड ऑफ स्पून विद कॉनकेव। वहां क्या था? यूजिंग आउटसाइड सरफेस ऑफ द स्पून। यहां क्या है? यूजिंग इनसाइड सरफेस ऑफ द स्पून विद कॉनकेव सरफेस bulging inward. Hold it in hand towards distant object such as the sun, a building, a tree or a pole. क्या करें? उसको आप ले जाएं किसी डिस्टेंट दूर के ऑब्जेक्ट के पास। फॉर एग्जाम्पल जहां पर रोशनी हो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री है, यहाँ पर सन है आपके पास, आप उसे कहाँ ले जाएं? वहां ले जाएं। ये प्रैक्टिकल भी आपने परफॉर्म करना है, लेकिन अभी यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। Hold it in one hand towards a distant object. Distant means दूर के, such as the sun, building or a tree or a pole. Try to get a sharp, well-focused image of the distant object on the wall or a screen. आपने करना क्या होता है? बेसिकली आपने क्या करना होता है? आपने इस तरह आप लेते हैं, आपके पास होता है मीटर रूल। ठीक है, आप लेकर जाते हैं उसे खिड़की के पास जहां पर सन आपके पास होता है। यहां पर आप रखते हैं कॉनकेव मिरर। यहां पर आप क्या रखते हैं? कॉनकेव मिरर। और यहां पर आपको उस जो इमेज होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, ये आपका मीटर रूल है, यहाँ रीडिंग्स होती हैं सेंटीमीटर्स में, आप उसे खिड़की के पास लेकर जाते हैं और उस कॉनकेव मिरर को क्या करवाते रहते हैं? मूव करवाते रहते हैं। प्रैक्टिकल भी है आपका, आप मूव करवाते रहते हैं और जिस पॉइंट पर आकर आपको सबसे अच्छा क्लियर इमेज नजर आता है वो बेसिकली क्या होती है? वो होती है उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। क्योंकि उस पॉइंट पर सारी जो रेज होती हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती हैं। जब वो कन्वर्ज कर जाती हैं एक पॉइंट पर तो एक क्लियर इमेज हमें ऑब्टेन होता है, और वही पॉइंट जो मीटर रूल पर होता है वो क्या होती है? उसकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स। ठीक है, यही वो यहाँ कह रहा है, ट्राई टू गेट अ शार्प वेल फोकस्ड इमेज। फोकस मतलब उसका प्रिंसिपल फोकस सही हो बिल्कुल, ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल और अ स्क्रीन। क्योंकि रियल इमेज आप उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर यूजिंग अ मीटर स्केल। जिस तरह ये मीटर रॉड से मैंने आपको दिखाया। कैन यू फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर? बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस सिचुएशन। अब जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो फिर उसमें आप रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
सो ये था आपके पास मिरर फार्मूला। इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एग्जांपल 12.1 पेज नंबर 41। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कहता है? अ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर आ गया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ये है कि फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। ये न्यूमेरिकल में वो आपको नहीं बताएगा, वो सिंपल। अब देखिए आगे पढ़ता हूं मैं। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने, उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आपके पास 66 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? हम शो करते हैं उसको P से। सो यहां पर वो कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। प्लेस्ड उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है मिरर से? 66 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ। अब वो आगे देखें क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। कि उस मिरर की फोकल लेंथ 46 सेंटीमीटर है। यहां पर स्टेटमेंट में उसने ये नहीं लिखा इज -46 सेंटीमीटर। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स में नहीं लिखता। आपने मिरर की टाइप को देखते हुए फोकल लेंथ का साइन डिसाइड करना है। अब मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होती है? बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, इसलिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। सो जो फोकल लेंथ होगी वो -46 सेंटीमीटर होगी। अगर आप सोल्यूशन पे जाए, उसने लिखा हुआ है गिवन डेट, जो गिवन डेटा है उसमें P आ गया 66 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और F आ गया -46। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है। उसने मांगा है हमसे फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, कि जो इमेज है वो कहां पर बनेगा, कितने फासले पर इमेज बनेगा। उसने हमसे बेसिकली Q मांगा है। ठीक है, सो अगर हम सॉल्व करें इसे तो 1/f, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमने निकालना है Q। जिस चीज को हमने निकालना है उसको हम क्या कर लेते हैं? दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, या 1/p को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो 1/q इज इक्वल टू, जब इसको वहां लेकर जाऊंगा वो हो जाएगा -1/f माइनस 1/p। ठीक हो गया। अब 1/q है, f की वैल्यू है -46, 1/-46, और p की वैल्यू है 66 -1/66। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1/27। अब वही बात जो मैंने पहले बताई थी, ये इमेज का आंसर नहीं है, ये इमेज डिस्टेंस का आंसर नहीं है। इमेज डिस्टेंस का आंसर क्या होगा? जब आप इसको उलट देंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे, या अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तब भी ठीक है। 27 उधर चला जाएगा और Q उधर चला जाएगा। ठीक है, सो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q जब उधर जाएगा, 27 उधर जाएगा, तो Q विल बी इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप आराम से कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें Q का आंसर आया नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में आया? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में Q क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनता है, Q आता है नेगेटिव आता है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फाइनल आंसर है ये नेगेटिव में आया। नेक्स्ट एग्जांपल 12.2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर दैट हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर उसने बता दिया कितना है? 6 सेंटीमीटर। किस मिरर के आगे पड़ा हुआ है? कॉन्केव मिरर के आगे पड़ा हुआ है। कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि रियल इमेज बनता है। अब फोकल लेंथ के साथ माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, +10। डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज। उसी तरह वो फॉर्मूला यूज किया, P को दूसरी साइड पे ले गया, फॉर्मूला बन गया 1/f माइनस 1/p। ठीक है, इसको सॉल्व किया और इन्वर्स लिया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? Q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि माइनस में क्यों आया Q का आंसर? मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में दोनों टाइप्स के इमेजेस बनते हैं, रियल इमेज बनता है और वर्चुअल भी बनता है। कॉन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल बनता है, कॉन्वेक्स में रियल नहीं बन सकता। दोबारा अगर आप पेज नंबर 38 पर आए, कॉन्केव मिरर का जो हेडिंग है उसके अंदर एंड वाली लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ें, बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस आर फाउंड।
दोनों टाइप के इमेजेस बनते हैं। अब फाइनल आंसर एग्जांपल 12.2 में आ रहा है -15 सेंटीमीटर। माइनस साइन किसको शो कर रहा है, वो नीचे बता रहा है द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल डेट इज बिहाइंड द मिरर। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है कि आपके पास जो कॉन्केव मिरर है वो भी वर्चुअल इमेज बना देता है, वो भी बिहाइंड द आपके पास इमेज बना देता है, ठीक है। सो इसलिए आपका जो Q है वो कितना आ रहा है -15 सेंटीमीटर, सो डेट द इमेज इज बेसिकली वर्चुअल। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, you can ask us through a WhatsApp message which will be given to you at the end of this video through a voice message, text message or through an image। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।